and subscribe my video. Morning to all of you. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. I hope many of you have joined at 8 o'clock also, which I announced last week, but it was slipped from my mind that it was 8 o'clock because scheduled time was 8:55. I'm extremely sorry that I just forgot the time I announced last week. Anyway, let us begin today from the point that we discussed last time about the first unit and just introduction of development. What is the meaning of development? And so many dimensions of development and related terminology, which is very important for all the examinations and understanding of the development economics and Indian economy and policies also. Now, last week we were discussing the simple question, what do you mean by development? And I gave you some points that gives you an idea about the three terminology, that is development, growth, and progress. Let me begin or revise first the issue that we discussed last time so that we can move forward and open some new dimensions, some new points of the issue that we are discussing right now. I hope most of you already joined. Let me begin my PowerPoint presentation and discuss the issues one by one. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much. That the first unit was the meaning of development and so many dimensions related to development. I mentioned something about J.K. Mehta and what he feels about the development and growth, these two terms. And then I was focusing on first terminology, economic growth. I have discussed all these points and related issues also. I don't think that you have any doubt about the term growth, although the term growth is very, very elaborated term. But we wanted to give you some preliminary idea about the term economic growth. In Hindi, we call it Arthik Samvriddhi. Arthik Samvriddhi. Then I discussed that it describes, in simple words, increase in output. And output means income, or you can say increase in income, which can be described in two different situations. Either it is extensive or intensive. The difference between these two is when you go in totality, it is extensive, and when you convert into per capita or per person, it is intensive. We will keep on discussing these terminologies off and on also, but I think this is very simple. What is extensive growth? What is intensive growth? Now tell me if you have any doubt about these two terminologies or this terminology growth and its two dimensions, extensive and intensive. Have you any problem in understanding that we had already discussed last time? Extensive growth and intensive growth. No, sir. Now, if I ask you, for a country like India or for any country, whether growth is desirable or not, for any country, for any economy. Desirable, sir. Yes, sir. Desirable, sir. Okay, it is desirable. But now we have to go through some different dimension. That is United Nations Development Program, UNDP, which is a very important organization
and that we'll cover in detail later on. Now, UNDP, while discussing economic growth, has given a warning that although growth is desirable, but some types of growth are not desirable. It is not in that all situations, all types of growth are desirable. Your answer was correct that growth is desirable, but growth has so many shades, so many types, and those types of growth are not at all desirable. आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से वांछनीय है, किंतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक संस्था है जिसने ये चेतावनी दी है कि देशों को कुछ प्रकार के ग्रोथ से, कुछ प्रकार की समृद्धि से बचना चाहिए। अर्थात हर समृद्धि वांछनीय नहीं होती। There are 5 types of growth that UNDP has listed which are not desirable, and the countries must avoid such situations of growth. What are those types of growth which are not desirable, that must be avoided? That I'm discussing you very briefly. That is, United Nations 1996 says 5 types of growth which are not desirable. Number 1 is jobless growth. रोजगार विहीन समृद्धि means that growth which actually increases the country's income or GDP, but at the same time there is increase in unemployment and misery also. आर्थिक समृद्धि तो हो रही हो देश में, राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही हो, किंतु साथ साथ यदि बेरोजगारी और विपन्नता भी बढ़ रही हो तो वह समृद्धि वांछित नहीं है। Jobless growth. I'm just giving you a very, very brief idea of these terminologies. What types of growth are not desirable? If you have any question, then you ask the question. I will go in detail. The first bit understand. सर जैसे इंडिया में अभी हो रहा है जॉबलेस ग्रोथ के लिए। Yes, जॉबलेस ग्रोथ ही है ये। अब तो खैर ग्रोथ भी अभी नहीं कह सकते, रिसेंट 1-2 साल में, कुछ साल में, अदरवाइज से पहले जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति रही है। Anyway, that discuss in Indian context later on. Just first we discuss the issues. मेरे ख्याल से आसान होगा आपको समझ पाना कि आर्थिक समृद्धि तो डिजायरेबल है, लेकिन वह समृद्धि जिसके साथ साथ जॉबलेसनेस की स्थिति हो, निश्चित रूप से वो डिजायरेबल नहीं है। I think you got the meaning. सर ग्रोथ इज डिजायरेबल, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ग्रोथ इज डिजायरेबल, इसका मतलब क्या होगा? ग्रोथ डिजायरेबल मतलब कि ग्रोथ की मीनिंग क्या है, पहले बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आउटपुट किसी चीज में आउटपुट इंक्रीज होता है तो ग्रोथ माना जाता है। किसी चीज में नहीं, देश की आउटपुट में। किसी चीज में आउटपुट नहीं होगा, नेशनल इनकम, देश की आय इनकम में, चाहे आप उसको डोमेस्टिक इनकम में देखें, चाहे नेशनल इनकम में देखें, चाहे ग्रॉस टर्म में देखें, चाहे नेट टर्म में देखें, जो भी आप इसका आकार लें, यानी हम ये सिंपल शब्दों में कहें, किसी इकोनॉमी के आउटपुट में अगर इंक्रीज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज ग्रोथ। तो क्या आउटपुट में वृद्धि होना उचित नहीं है? क्योंकि आउटपुट ही तो इनकम है। आपने फर्स्ट पेपर में शायद पढ़ा होगा कि फिजिकल आउटपुट को जब हम कन्वर्ट करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो नेचुरली ग्रोथ होना या आय का बढ़ना तो वांछनीय है, वही तो कह रहे हैं ग्रोथ डिजायरेबल। देश की आय का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, ये उचित है, वांछित है या नहीं है, बताएं आप। यही तो मैंने सवाल शुरू किया था कि ग्रोथ डिजायरेबल है कि आपने डिजायरेबल है। फिर आप पूछ रहे हैं ग्रोथ डिजायरेबल का मतलब क्या है, आपने खुद ही आंसर दिया था। यानी किसी देश की उत्पादन स्तर में होने वाली वृद्धि या आय में वृद्धि होने वाली वृद्धि निश्चित रूप से वांछित है, किंतु अगर उसके साथ साथ आय बढ़ रही हो, दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ रही हो, विपन्नता बढ़ रही हो, तो ये डिजायरेबल नहीं है।
I hope now it should be very simple. Now, second type of growth which is not desirable is called ruthless growth या निष्ठुर समृद्धि, निष्ठुर, ruthless growth, which means that growth which increases inequalities of income and wealth. अगर देश की आय तो बढ़ रही हो किंतु समूहों के मध्य आय और संपत्ति की विषमताएं भी बढ़ रही हैं, increasing gaps of income and wealth between poor and rich. This is not desirable. This is not good for the society as a whole. तो इसे कहते हैं ruthless या निष्ठुर समृद्धि. Because in a civilized society, we always look forward for more and more equalities, not the rising inequalities. इसलिए देश की आय बढ़ रही हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, लेकिन साथ साथ अगर आय और संपत्ति की विषमताएं या दूरियां भी बढ़ रही हो तो निश्चित रूप से ये वांछनीय नहीं है. If you have any doubt in any point, please ask the question. But please first listen it carefully. Only then you ask the question. Because I am trying to summarize all the points briefly, very briefly. Now, third is voiceless growth या स्वर विहीन समृद्धि. Voicelessness, which means that growth which allows no or very less participation of deprived sections in decision making. अर्थात देश में समृद्धि तो हो रही हो, लेकिन साथ ही साथ जो समाज के वंचित समूह हैं, पिछड़े हुए समूह हैं, उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का या तो कोई भी अधिकार ना हो, कोई भी अनुमति ना हो, या बहुत कम अधिकार हो, यानी उनकी कोई वॉइस ना हो, उनकी कोई सुनवाई ना हो. That is called voiceless growth. And you can see such voicelessness in different societies very clearly, especially in India, where a large section of people are deprived, not allowed to participate. Sir, farmers की condition को voiceless growth किसको? फार्मर्स की कंडीशन जो इस टाइम पे है, बहुत सारे, मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ पीपल. आप किसी एक केवल आप किसी एक कार्य क्षेत्र की ही बात ना करें, हम लोग इसको और बात कर सकते हैं, हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे भी. जैसे आप डिप्राइव्ड सेक्शन से आप क्या समझते हैं? डिप्राइव्ड सेक्शन या वंचित समूह, पिछड़े हुए समूह, हाशिए पर समूह, डिप्राइव्ड. इसमें आदिवासी लोग भी शामिल हो सकते हैं, ट्राइबल्स, आदिवासी लोग भी शामिल हो सकते हैं. आदिवासी, चलिए आपने कहा आदिवासी, चलिए मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ. सर जेंडर भी तो एक वो हो सकता है. यस, दैट इज मैंने कहा बहुत बड़ा दे रहा हूँ. फीमेल पॉपुलेशन which are also deprived sections in large number of countries, including India. तो अब मैंने कहा केवल किसी कार्य क्षेत्र के बारे में बात ना करें, हम लोग तो यहाँ पे एक जेंडर के आधार पर बात कर रहे हैं, लैंगिक आधार पर भी पार्टिसिपेशन नहीं है. आप इसको आप अगर यूं देखें तो बेहतर होगा, न कि आदिवासी और न कि किसान, वो तो बहुत छोटे से एग्जाम्पल है. आप देखिए अभी लास्ट वीक ही आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि डिफेंस सर्विसेज में, परमानेंट कमीशन में, एनडीए में फीमेल्स को भी पार्टिसिपेट करने की अनुमति है. आफ्टर 70 years, after so much growth in India, now when Supreme Court is intervening to allow the females to participate,
that you can say it means till now they have remained deprived. हम लोग इंडिया में कहते हैं, आपने पॉपुलेशन में पढ़ा भी होगा, पॉपुलेशन पॉलिसी जब पढ़ेंगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि in India the decisions of birth control are taken by men, not by women. Part 3 में पूरी population policy है. I will give you very, very interesting examples कि how in the key areas of life which affect women, in those areas also decision making is done by men, not by women. They have no voice at all to take decision. That is called voiceless growth in a larger way. The voicelessness can be on the basis of poor and non-poor. Voicelessness can be in the areas of political decision making, economic decision making, family decision making. There are so many dimensions of voicelessness. And also at the global forum, you can see in global organizations, global forums, less income economies, deprived economies have no voice at all. As a nation, they face voicelessness, where decisions are taken by few powerful nations only. That is also voicelessness at global level also. Anyway, that was discussing me in terms of economy or economy of India, because it is United Nations that wants. It is not only for a country like India, but for all the countries. These types of growth must be avoided. And this voicelessness we'll discuss later on in Gender Development Index, which is in your syllabus, and Gender Inequality Index, which is also in your syllabus, but in later parts. Now, next is futureless growth, या भविष्य विहीन समृद्धि. Now, this issue, I hope that is the most important global issue nowadays, which means that the growth which destroys environment and natural resource base is not desirable. That is why we have the concept of sustainable development. If the income of the country is increasing, but at the cost of environment, pollution, depletion of natural resources, that type of growth is not desirable, because the future generations will not be able to survive or not be able to maintain a desirable living standard or life. So this type of growth is also not desirable. And finally, a rootless growth. जड़ विहीन समृद्धि या निर्मूल समृद्धि means the growth which destroys healthy traditional practices and culture. अर्थात वो समृद्धि जो स्वस्थ परंपरागत क्रियाकलापों और संस्कृति को नष्ट करती हो, वो भी उचित नहीं है. यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, विच डज नॉट मीन सुपरस्टिशंस. ये अंधविश्वास की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं. स्वस्थ परंपरागत गतिविधियां, क्रियाकलाप, उनको अगर कोई समृद्धि नष्ट करती है तो वो समृद्धि उचित नहीं है, वांछित नहीं है. हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अगर नष्ट करती है तो वो भी समृद्धि उचित नहीं है. Now, these are 5 terminologies or 5 types of growth which are not desirable as per United Nations. Now, you have any doubt, any question in these 5 points, then I can discuss a little about that. I can elaborate. रोजगार विहीन
निष्ठुर, स्वर विहीन, भविष्य विहीन और निर्मूल। अगर आप में किसी को इसमें कोई भी शंका हो तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड कल्चर की कुछ एग्जांपल दे दीजिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। फैमिली से लेकर, अपने परिवार से लेकर समाज तक, पूरे समाज तक, अर्थव्यवस्था में। हमें ये बताइए, एक सर बताइए कि अभी कुछ समय पहले ही इंडिया ने एक डे अनाउंस किया, एक दिन अनाउंस किया जिसका नाम है नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसकी जरूरत क्या पड़ी जबकि हम लोग पावरलूम में हैं, मशीनों से कपड़े बन रहे हैं, तो नेशनल हैंडलूम डे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मुझे ये बता दीजिए जरा। स्किल इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जो उसकी आर्ट है वो कहीं मतलब विलुप्त ना हो जाए, एक तरह से खत्म ना हो जाए। ये बताइए कि हैंडलूम जो क्राफ्ट है वो हमारी हेल्दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है या नहीं है? यस सर, दैट्स राइट। यस सर। क्या हम पावरलूम मशीनीकरण के द्वारा अपने इस पारंपरिक स्वस्थ क्रियाकलाप को नष्ट होने दें? नो सर। That is the best example. That is why we have announced National Handloom Day. Why we have announced River Ganga as national river? Why we have announced River Ganga as national river? Because Ganga is not only a river, it is our lifeline. It is our culture. But if because of growth, Ganga is being polluted because of growth, it has become the garbage dump. That is not allowed. That is not good. Such type of growth is not good. और कल्चर की बात हम करें, इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, हम लोग आगे बात कर सकते हैं, बहुत इमोशनल बातें भी आ जाएंगी। ये बताइए आप हमें कि किस तरह का परिवार अच्छा माना जाएगा, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली सर। एक्सटेंडेड फैमिली। क्यों बताइए? Actually, this is a controversial debate. Everyone is. There is no controversial debate. No controversy at all. Sir, nuclear family. Then I told you it is very emotional. एक्सटेंडेड फैमिली। मैं आपसे ये बताता हूँ, I have seen, you might have seen also, कि it is because of the some compulsion of income maybe or growth. बहुत सारे में उनके चिल्ड्रन कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, और उनके ओल्ड पेरेंट्स बिल्कुल डिस्टिट्यूट, लोनली अपने घर में इंडिया में है। आपने बहुत सारे एग्जांपल होंगे। एंड देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर देम आल्सो फॉर इवन सिंपल रिक्वायरमेंट ऑफ द ओल्ड पेरेंट्स, नोबडी इज देयर। क्या ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़ दें? नो सर। आप देखिए, because I want you think about this. मैं तो बहुत इस बात फोकस करता हूँ। अगर हमारी क्लास होती है मैं आपको बहुत सारी बातें बताता आमने सामने। आपने एक शब्द सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकी लाभांश। डिविडेंड, लाभांश, डेमोग्राफिक एंड जनांकिकी है। डू यू नो मीनिंग ऑफ दिस टर्म, demographic dividend, which is very important term for India? Anybody? No sir. Okay, now let me give you, because this is part of the population, but I'm just giving you examples so that you can understand. You asked me the culture, that I can tell you what is the culture. Demographic dividend means when the low age population is very large. Growth is brought in the name of which India has. जब जनसंख्या में कम आयु के जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा हो, it means if our low age population is very big, it means when they become young,
and productive, that is the dividend, that is the benefit for the country, because that is the productive population. बात समझ आ गई होगी? That is called demographic dividend. तो बहुत सारे देशों में जहां पर, स्पेशली इंडिया के लिए हम लोग टर्म यूज कर, जहां पर अल्प आयु की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जहां पर चिल्ड्रन इज लार्ज नंबर, इट मींस फॉर सम डिकेड्स they will continue to contribute the growth potential of the country. That is called dividend. बात समझे कि नहीं? इतनी बात समझे कि what is demographic dividend in nutshell, very briefly. Have you any doubt in this part? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. Now, No, sir. No, sir. You will get this term in every book. You search. You also get this meaning of this term, but I remember that some time back there was a conference in some university. I was also one of the speakers, and that the population, the issue of the population, and I was a speaker and chairing the session also. So some of the participants discussed the demographic dividend for India, all the data and the benefits associated with this, etc., etc. Very good lecture. And then, as I was presiding the session, I at last summarized all the points raised or told by the speakers. It was a huge gathering. And then, while discussing or appreciating the speech of one of the speakers about demographic dividend, I told the audience, okay, demographic dividend is very good, and it's a very popular terminology for India also. But now I am giving you one new terminology which you will not find in any book, because I have myself given this terminology. I have created this terminology, and that is demographic debt, DEBT. जनांकीय लाभांश तो बहुत अच्छा शब्द है, प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैंने कहा लोगों से वहां पर कि एक शब्द मैंने गढ़ा है, आपको बताता हूं, वो है जनांकीय ऋण, डेमोग्राफिक डेप्ट। और ये शब्द किसी किताब में नहीं है, किसी जर्नल में भी नहीं है। कैन यू टेल मी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ द टर्म डेमोग्राफिक डेट दैट वाज क्रिएटेड बाय मी? आपको आइडिया बताइए क्या है, क्या लगता है डेमोग्राफिक डेट क्या हो सकता है? ओल्ड एज पॉपुलेशन। एग्जांपल बता सकता हूं, रिलेटेड टू ओल्ड एज पॉपुलेशन, लैक ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट सर लो एज पॉपुलेशन का प्रोडक्टिव ना होना भी हो सकता है। सर जब ये जो केयरिंग फॉर द एल्डरली ज्यादा हो जाएंगे तो डिविडेंड कम हो जाएगा फिर हमारा। नहीं नहीं नहीं, देख चलिए, मैंने इसलिए कहा था ना, चलिए लेट मी स्पीक। सर वर्किंग पॉपुलेशन जो कर पाती वो ना करके, सर जो चाइना एग्जांपल हो सकती है इसकी, चाइना। चलिए लेट मी फर्स्ट टेल यू द मीनिंग, बिकॉज़ सर वर्किंग पॉपुलेशन जो कर पाती वो ना करके, नहीं वो भी नहीं है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैं बिल्कुल एक नया आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि ये किसी में इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, तो मैंने क्या कहा कि डेमोग्राफिक डेट क्या मतलब है। ये सोचिए कि जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो आयु की जनसंख्या, जो बहुत बच्चे हैं, ये कुछ वर्षों बाद जब यंग और हो जाएंगे, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाएंगे, तो वो इनकम जनरेट करेंगे, कंट्री के लिए ग्रोथ करेंगे, एटसेट्रा। यही तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वो अच्छा है, जितना बड़ा ये साइज पॉपुलेशन होगा उतना ही बड़ा उस कंट्री का ग्रोथ पोटेंशियल भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज वर्किंग एज पॉपुलेशन। एंड इंडिया इज नाउ इन दैट सिचुएशन ऑफ रीपिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन मैंने वहां पे कहा कि लेकिन जो आज बच्चे हैं वो कई दशक तक आगे चलकर भविष्य में उत्पादक योगदान करने की क्षमता रखेंगे, और इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और देश के लिए अच्छा है। हमने कहा ये तो एक साइड है। अब दूसरा साइड सोचिए कि ये जो बच्चे आज हैं, और जब तक ये उत्पादक बने रहेंगे, इनको उनके जन्म से लेकर उत्पादक
रूप में उत्पादक आयु तक लाने में उन पेरेंट्स की भूमिका रही कि नहीं, बताइए आप। यस सर। यस सर। सिंस बर्थ, यस सर। यस सर। उनके इस एज में आने तक उनकी पेरेंट्स की बहुत भूमिका रही है। तो आई टोल्ड द ऑडियंस कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट दिस पॉपुलेशन हैज डेट ऑन देयर पेरेंट्स। इस जनसंख्या का अपने माता पिता के प्रति ऋण है। अब आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये नहीं कि आप उत्पादक हो गए और आपने अपने पेरेंट्स को अलग थलग छोड़ दिया। दैट इज नॉट, यू हैव डेट। हालांकि वो ऋण कभी भी आप चुका नहीं सकते। ये आप नहीं सोच सकते इस एज में कि आपको आराम से सुलाने के लिए आपकी मां कितनी रात खुद सोई नहीं होंगी। ये शायद आपको एहसास नहीं होगा अभी। कितना कष्ट माता पिता ने उठाया होगा आपको उस एज में डेमोग्राफिक डिविडेंड तक लाने के लिए, कितना उन्होंने त्याग किया होगा आपको पढ़ाने लिखाने और इस एज तक लाने में, अपने अपने सुखों का त्याग करने में। ये भी तो ऋण है आपका। हम लोग केवल लाभ की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य की बात नहीं करते। दैट इज आवर कल्चर। अब मैं हमेशा कहता हूं कि पहले चीज शुरू होती है फैमिली से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ मस्ट बी योर पेरेंट्स। रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। सर एक क्वेश्चन है। दिस इज आवर डेट टू आवर पेरेंट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर डेमोग्राफिक डेट को लेकर। हाँ सर क्वेश्चन ये है कि सर डेमोग्राफिक डेट जो है तो सर फिलोसफिकल शब्द लग रहा है सर, ये इकोनॉमिक डिक्शनरी में शामिल होगा? मैंने कल भी आपसे कहा था, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम लोग जब जेके मेहता साहब की बात करते हैं, ही इज नोन एज फिलोसफर इकोनॉमिस्ट। तो आप फिलोसफी को इकोनॉमिक्स से अलग मत कीजिए। जब आप कहते हैं ह्यूमन वेलबींग, जब आप कहते हैं प्रोग्रेस, मैं आगे प्रोग्रेस पे आ रहा हूं, तो उसमें केवल और केवल इनकम को मत देखिए आप। Our perception towards life is also progress. इसलिए अगर हम केवल और केवल इनकम पर ही फोकस कर रहे हैं, it means it is too narrow and too selfish concept. And that is not desirable. सर इसका मतलब हमें इमोशंस को भी इकोनॉमिक्स में शामिल करना होगा? क्यों नहीं है? पूरा का पूरा एक ब्रांच है आपका, पढ़िएगा। हालांकि आप इसलिए तो अभी नहीं है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियर, लोगों का व्यवहार, डिसीजन मेकिंग, एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सेलर, पूरा का पूरा ब्रांच ही यही है पूरा, व्हिच इज नोन एज। सर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में लिखा था कि जिसमें धन की बात हो उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। भैया वो तो एडम स्मिथ की बात है, धन की बात हो इस पर, वो तो केवल एक उनका एक एंगल की, वो इस एंगल से बात करे एडम स्मिथ। इट इज साइंस ऑफ वेल्थ। अब अगर आप मेहता साहब पढ़े थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस, उसमें वेल्थ की बात ही नहीं आ रही है। इच्छा विहीनता का सिद्धांत ही अर्थशास्त्र है। तो दे आर डिफरेंट व्यूज अबाउट डिफरेंट डायमेंशंस, एंड माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू मस्ट enlarge your vision, must enlarge your understanding than what narrow concept have been given by a few people. मैं हमेशा कहता हूं, to become a good human being is most important. And that is our culture. मैंने आपसे बात की और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये बात मैं वहां पर रख रहा था तो मुझे मालूम नहीं था उसके क्या रिएक्शन होगा उस ऑडियंस में। बट सडनली अ विमेन ऑफ से 60+ एज वो खड़ी हुई और वो खड़े होकर रोने लगी वहां पर कि सर आपने जो बात आज कही है ये मेरे जिंदगी का एक हिस्सा है। उसने खुद दुख व्यक्त किया कि वो इतनी उम्र में आ गई, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट में छोड़ दिया, अकेले छोड़ के चले गए सब। इज इट आवर कल्चर? Is it to think about this? सर आपका इस पे कुछ रिसर्च होगा सर, क्या हम लोगों को सर दे सकते हैं? रिसर्च क्या है? मैं क्योंकि हम लोग का दुख ये है ना कि हम लोग आमने सामने बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। कभी हम लोग बातें करेंगे इस पर, लेकिन ये थोड़ी सी मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई हर व्यक्ति कम से कम ये अच्छी बातें जरूर सीखे जीवन में। बाकी आप उपलब्धियां बहुत कर सकते हो, यू कैन बिकम IAS, यू कैन बिकम एनी पोजीशन, बट द फर्स्ट थिंग ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू पे रेस्पेक्ट टू योर सीनियर्स और टीचर्स और पेरेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एंड गेट देयर ब्लेसिंग्स। ये बहुत, बिकॉज आई हैव
such blessings for my teachers और my guru, मुझे इस तरह का blessing मिला है और मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा हो तो शायद बेहतर हो. Anyway, ये बहुत सारी बातें अलग हो जाएंगी. In addition to what we are discussing right now, sometime I will try to discuss or from my own experience of life also मैं आपको कोई चर्चा करूंगा इस पर. हो सकता है कि सबका बिहेवियर, सब इमोशन लेवल सबका अलग अलग होता है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको भी जरूर ऐसे ही बनना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि बेहतर ह्यूमन बीइंग जरूर बनना चाहिए. और उसीलिए, और देखिए जो बात हम लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस और कल्चर की बात, ये हमारी अपनी बात नहीं है, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है. यानी उन्होंने तो फील किया होगा ना कि ग्लोबल इशू है ये. इट इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड कल्चर. It is what is UN has said, and that is way back in 1996. यानी उस समय आपका शायद जन्म नहीं हुआ जब यूएन ने ये बात सोची थी. और उसके बाद से तो आज ये वर्ल्ड जो है और भी सो कॉल्ड मॉडर्न हो गया है. उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है हर फैमिली में कि जब फैमिली के हर मेंबर के हाथ में मोबाइल होता है तो फैमिली वाले आपस में बैठ के कभी बातचीत भी नहीं कर पाते. बैठे हुए तो सब अपने मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कोई आपस में पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, भाई बहन बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि इट मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड कल्चर. सर ये तो एलियनेशन का कांसेप्ट है सर, अलगाववाद का, फिलॉसफी का. तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिलॉसफी को आप इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते. सर जैसे यंग जनरेशन है वो हमारी ओल्ड ड्रेसेस पहनना भूल रही है और वेस्टर्न कल्चर अपना रही है, ये भी इसी का पार्ट हो सकता है सर, रूटलेस ग्रोथ. जब आपने लिखा है हेल्दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस तो वो यहीं पर आती है. उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, हमने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन फैमिली यू कैन थिंक अबाउट इट. आई हैव सीन सो मेनी पीपल, सो मेनी एग्जांपल्स. आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है, उनके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज ग्रोइंग डे बाय डे इन आवर सोसाइटी. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो बहुत सारी बातें हो सकती है. यू मस्ट थिंक, क्योंकि आप उस एज में आ चुके हैं कि आपको भी इस पर सोचना चाहिए और सोच के इसके नए डायमेंशन पर विचार करने चाहिए. So anyway, why I was highlighting this point, because this question was asked in IAS. उसमें क्वेश्चन ये आया था कि what types of growth are not desirable as per United Nations. ये मेंस में पूछा गया था. क्योंकि हम लोग अगर ये 5 शब्द जो आपके सामने अगर ये ना पढ़ते तो हम लोग हमेशा कहते हैं ग्रोथ तो हमेशा डिजायरेबल होगा. ग्रोथ डिजायरेबल क्यों नहीं होगा? मैंने ये सवाल पूछा था आपसे पहले, आपने कहा नहीं ग्रोथ डिजायरेबल है, लेकिन किस प्रकार ग्रोथ डिजायरेबल नहीं है उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स हाईलाइट किए. इनको हम लोग आगे और देखेंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स में देखेंगे. अभी इट इज नॉट कि स्टोरी हमारी खत्म हो गई यहाँ पर. खासकर फ्यूचरलेस ग्रोथ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही है डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल, पूरा हिस्सा है. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसको हम लोग मेजर भी करते हैं. रूथलेस ग्रोथ, लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, वो इसके टेक्निकल मेजरमेंट्स हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, मिजरी, ये आपके सिलेबस का पार्ट है. तो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. आई विल जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द a few conceptual dimensions related to growth. Okay, let us move forward. Now what is development? मैंने पहले भी कहा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं और यही बात की थी जेके मेहता साहब ने. उन्होंने कहा था ग्रोथ हैज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंट हैज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस. अब फर्स्ट को देखें, हमने ग्रोथ की बात की, थोड़ा डेवलपमेंट को देख लें ब्रीफली. तो मैंने इसको 2-3 पॉइंट पर हाईलाइट किया है. मैंने लिखा है कि दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब not the quantitative measure of a growing economy, but the economic, social or other changes that produce the growth. ये कहता है कि इस शब्द का उपयोग किसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक माप के लिए नहीं की जाती. यानी हम क्वांटिटी नहीं नाप रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना इनकम हुआ, ये नहीं माप रहे हैं.
बट तो फिर क्या है ये? इकोनॉमिक, सोशल और अदर चेंजेस दैट प्रोड्यूस द ग्रोथ। अर्थात इसके अंतर्गत वो आर्थिक परिवर्तन, वो सामाजिक परिवर्तन व वो अन्य परिवर्तन है जिससे ग्रोथ उत्पन्न होती है। अभी क्या है? आई एम जस्ट कमिंग दैट पॉइंट। इट रिक्वायर्स चेंजेस इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सोशल एटीट्यूड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके लिए उत्पादन की तकनीक में, सामाजिक दृष्टिकोण में और संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। The word development refers to quantitative and qualitative improvement in the development variables। जो शब्द विकास है, इसमें जो विकास के वेरिएबल्स हैं, जो विकास के चर हैं, उनमें मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार, ये दोनों जुड़े होते हैं। It aims at improving the quality of life of an individual and society। विकास का उद्देश्य एक व्यक्ति और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। It is just the beginning or the base at which I am developing this term economic development। Now, what have you understood by this two simple sentences, two bullet points? What is the general meaning of the term economic development? Because I'm going to elaborate this। क्या समझते हैं आप कि एक विकास शब्द का क्या अर्थ आपके हिसाब से मिल रहा है? सर कि किसी भी कंट्री में सबसे पहले ग्रोथ तो हो सकती है, बट उसके बाद हमें अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब इनकम भी देखनी है कि इनकम भी ग्रोथ हो। आपने कहा सबसे पहले ग्रोथ हो सकती है, कहा ना? यस सर। Now, just listen to this। Sir, development is the prior stage of the growth। ये देखिए आपके सामने आ रहा है, ये मैंने इसको किया है। देखिए आपके सामने एक मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया इसको, जिसमें जो आपने बात की उसका ठीक उल्टा है। मैंने लिखा है यस सर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द हायर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ऊपर ग्रोथ ऊपर है, डेवलपमेंट नीचे है। Economic growth is a narrow concept as it includes only an increase in income। ग्रोथ एक संकीर्ण संकल्पना है। डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट। सर पीपीटी नहीं शो रहा है। पीपीटी शो नहीं हो रहा है। हो रहा है सर, हो रहा है सर हो रहा है नहीं सर, नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई पिन करो सर, हो रहा है सर सर की दूसरी करो, हो जाएगा सर की सेकंड आईडी पिन करो, पिन कर दो सेकंड अकाउंट। इट्स विजिबल, जिससे अभी तक विजिबल था उसी तो विजिबल होगा ना बे, विजिबल। ठीक है, ओके। सुनिए फिर से, मैं जो उन्होंने कहा था मैं उसकी बात कर रहा हूं पहले, देन आई विल डिस्कस कि ये जब आता है डिफरेंशिएट करने को आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंशिएट कीजिए। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है हर एग्जाम का, तो मैं इसको कई तरह से बात करता हूं। नंबर 1 तो ये है कि ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, एक संकीर्ण अवधारणा है, और डेवलपमेंट एक लार्ज कंसेप्ट है। आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा नैरो है, कौन सा लार्ज है या ब्रॉड कंसेप्ट है? बहुत आसान है, क्योंकि ग्रोथ में केवल इनकम के बारे में बात कर रहा है अभी आपने बताया, और डेवलपमेंट में वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं एज ए लेमैन, बड़ा कहीं होता है ना, बहुत हम लोग कुछ नुस्खे निकालते हैं याद रखने के। तो ग्रोथ को सर हम जब ग्रोथ को देखेंगे तो सर इंडिविजुअल हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल चीजों में कितना ग्रोथ हो रहा है। भाई मैंने पूछा ग्रोथ की स्पेलिंग छोटी है, डेवलपमेंट
देखेंगे ग्रोथ देखिएगा तो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट से 6 अल्फाबेट से ग्रोथ बन रहा है। यस सर, वो नैरो हो डेवलपमेंट गया। में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं? कितने अल्फाबेट्स आए डेवलपमेंट में? 11 अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह सकते हैं ना, डी पहले आता है, जी बाद में। 11 पे 6 तो छोटा है, 11 बड़े तो बड़ा है, बस ऐसे याद रख लीजिएगा। यस सर। बट प्लीज डोंट राइट इन योर आंसर बुक, इसलिए बड़ा है। यस यहाँ पे से सर, लिखते हैं ये चीज आप भी बता सकते हैं सर, छोटा दिख रहा है और डेवलपमेंट बड़ा दिख रहा है। नहीं, मैंने वही तो कहा ना, लेकिन हिंदी में लिखिएगा तो विकास समृद्ध होने में 3-3 अक्षर ही आएंगे। हिंदी मत लिखिए, इसमें डेवलपमेंट इंग्लिश में लिख दीजिए, बड़ा हो जाएगा। एनीवे, लेट अस, दिस वाज लाइटर साइड, द सीरियस साइड, कि व्हाई ग्रोथ इज नैरो कंसेप्ट। तो हमने ग्रोथ डेफिनेशन देखा था, अभी उसी कंसेप्ट की बात हम लोग का जो डिफाइन किया था, क्योंकि ग्रोथ मींस, हमने कहा था ग्रोथ मींस इंक्रीज इन इनकम, ये तो कहा था, ग्रोथ इन इनकम। लेकिन अभी हमने डेवलपमेंट जो कहा था, हमने कहा इट इज नॉट द इन क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव चेंजेस। आपने कहा सोशल परसेप्शन में, टेक्निक में, हर चीज में बदलाव जो ग्रोथ का होता है वो है आपका डेवलपमेंट। और उसको मैंने आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन नैरो कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स ओनली एन इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि ये केवल इनकम में वृद्धि को जोड़ता है। बट कॉम्पिटिटिवली डेवलपमेंट ए ब्रॉड कंसेप्ट एट इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन इनकम एज वेल एज इंप्रूवमेंट इन नॉन इनकम डायमेंशंस। डेवलपमेंट इसलिए बड़ा शब्द है क्योंकि इसमें इनकम के अलावा गैर इनकम, नॉन इनकम आयामों को भी जोड़ा जाता है। वो क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज लिटरेट होना, एजुकेट होना, क्या ये क्वांटिटेटिव इनकम है? ये नो सर। नो सर, ये नहीं है। क्वालिटी इट इज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। to be literate, to be educated, to be skilled, it is not quantitative, it is the qualitative improvement. To become healthy, is it quantitative or qualitative dimension? सर qualitative है। the qualitative, क्वालिटेटिव, longer life span, healthy human being, education, skilled, these all are qualitative changes. Your social perception, जो मैंने अभी आपसे बात की, आपकी अवधारणा, आपके सोचने और समझने का व्यवहार, आपका व्यवहार बदलाव, चेंज इन बिहेवियर ऑल्सो क्वालिटेटिव चेंज, कि आपका नैरो कंसेप्ट है या ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो ये जो नॉन इनकम डायमेंशंस हैं, ये डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। अब देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आ रही है, हमने लिखा था यहां पर, जो सेकंड पॉइंट था आपका, द वर्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। यहां देखिए दोनों लिख रहा हूं मैं, इन द डेवलपमेंट वेरिएबल्स, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट डिफाइन करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट इन इनकम विच इज क्वांटिटेटिव, ये तो लेते ही हैं, उसको अलग नहीं कर देते। एंड साथ ही साथ आप जो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिया आपको, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, उसको भी इंक्लूड करते हैं। दैट इज व्हाई डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग इससे कि ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग। नो, ग्रोथ includes the development includes the growth. The term development includes the growth because development includes income as well as non-income dimensions of improvement. Whereas the term growth focuses only on income. But when we add other non-income dimensions also to it, it becomes development. That is why it is a broader concept, and growth is comparatively a narrow concept. Sir, change in financial situation is also a quantitative method. आप देखिए ना, आपने क्या लिखा था, फिर से देखिए यहाँ पर आपने लिखा है फर्स्ट बुलेट, देखिए फर्स्ट बुलेट लास्ट पॉइंट लिखा है, इट रिक्वायर्स चेंजेस इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉमा, इन सोशल एटीट्यूड्स एंड इंस्टीट्यूशंस
And institutions can be social institutions, institution can be financial institutions, institutions can be political institutions or any institution. सर yes, yes. सर एनी इंस्टीट्यूशन मैं सब सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला? सर इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई भी होनी चाहिए। कोई भी हो सकता है ना, इंस्टीट्यूशन है, कोई भी किसी प्रकार हो सकता है। संस्थाएं लिखा है, संस्थाएं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो, वो स्वास्थ्य संस्थाएं हो, चाहे आपके वित्तीय संस्थाएं हो, कोई भी संस्था जो जिसमें परिवर्तन अंततः ग्रोथ की ओर उन्मुख है, वो संस्था कोई भी हो सकती है। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे ना। और अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेहतर हो रहे हैं तो ह्यूमन क्वालिटी बेहतर होगी, और ह्यूमन क्वालिटी बेहतर होगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कंट्री की बढ़ेगी। दैट इज व्हाट डेवलपमेंट, because we're describing it only in very one two words only, but when you enlarge the term institutions or social attitudes, बहुत बड़ा हो जाता है, और ये चेंजेस बहुत रिक्वायर्ड है। सामाजिक दृष्टिकोण पर भी बहुत जरूरी है। सर मैं एक टॉपिक से हटके थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बताएं। सर जैसे हमें पता है कि चाइना में जो बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती है, जिससे छोटे बच्चे भी प्रोडक्शन का पार्ट बन सकते हैं। सर उसको हम इंडिया में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है, देखिए दोनों बातें हम लोग अभी एक दिन हम लोग चाइना में बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बेसिक डिफरेंस समझिए कि जब भी हम लोग किसी कंट्री की बात करते हैं, किसी कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम उसके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा मैं जो शब्द कह रहा हूं, हम उसके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं या नहीं है? Whether society and economy are both attached to each other or not? Just answer first with this question. Yes, sir. Attached हैं, and both act and react with each other also. Yes, sir. ये भी है। अब नाउ मैंने उस दिन आपसे कहा था कि बट इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सर्वाइवल और ऑफ एनी कंट्री। ये बेस है, प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये तो हम बाकी कुछ बात कर नहीं सकते। एंड सुपर स्ट्रक्चर कवर्स पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, social system, and so many things. These are superstructure. And in the superstructure, जो आपने सवाल पूछा उसकी बात पे आ रहा हूं, the superstructure most important component is the political system, because decision making starts from the political system. Now when we compare India and China, we just forget that India has a democratic political system which is not in China. In China, it is communist system. It is Politburo decisions. In China, people or persons or names will change, but their basic system will not change. In India, and there is only there is no multiple political parties in China, which we have in India. It is more a command type of economy, which is not India. I can give you many examples. आपने जो सवाल पूछा बहुत examples हैं. So we must not forget the political system, जहां decision making होता है. क्या चाइना की तरह कड़े नियम की कल्पना हम भारत में कर सकते हैं? No, sir. No, sir. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, संभव है सर, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो लेट अस leave this issue right now. I will discuss this issue in detail with so many examples and data also. It is a total different country. So why we cannot do this? भारत के
सर भारत के जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं उन पे सर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इस वजह से वो अमीर होते जा रहे हैं और देश की जनता गरीब होती जा रही है। Actually, this is not the issue right now. Let us first cover our topic, cover our points, then can discuss these issues in detail. मैंने आपसे कहा कि जो inequalities है उसका मुद्दा हम लोग आगे देखेंगे. Let us first understand the terminologies first. And this is what you are saying. This is just for your thought-provoking issues also. जब आप खुद भी सोचिएगा, हम लोग तो बात करेंगे इस पर. Let me first covers at least some parts of our syllabus also. Now, again coming to first development. तो जो हमने ये कहा कि अभी हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, हम लोग आगे प्रोग्रेस पर आएंगे. तो मैंने आप ये लिखा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स क्या है. तो आपने कहा ग्रोथ केवल इनकम पर फोकस करता है, डेवलपमेंट में इनकम प्लस नॉन इनकम दोनों डायमेंशन आते हैं, इसलिए लार्ज कंसेप्ट है. ग्रोथ या इनकम को मेजर करना यूजुअली हम इसको एनुअल मेजर करते हैं. लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि किसी देश के प्रोडक्शन में या इनकम में एनुअल इंक्रीज, एनुअल चेंज को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. इट मींस दिस इज अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट. इकोनॉमिक ग्रोथ इज शॉर्ट टर्म बिकॉज 1 ईयर इज शॉर्ट टर्म. ये अल्पकालिक संकल्पना है. बट जो बात हम लोग डेवलपमेंट में की, आपने कहा सोशल परसेप्शन में चेंज, एजुकेशन में चेंज, स्किल डेवलपमेंट होना, हेल्थ पैरामीटर्स में चेंज, क्या या टेक्निक्स में चेंज, क्या ये चेंजेस 1 ईयर या एनुअल हो सकते हैं या इट लॉन्ग टर्म होगा? लॉन्ग टर्म. Therefore, if you compare growth and development, the growth is a short-term concept where development is a long-term concept. It means those long-term changes actually will result into growth. That is the first bullet point you can see. Development is a sustained effort. जो एक लॉन्ग पीरियड में है, वही मैंने सामने लिखा है. इट इज लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस एंड रिक्वायरिंग एफर्ट्स. दिस इज स्ट्रक्चरल चेंज. यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ओनली देन यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ विद शॉर्ट टर्म. तो मैंने इसी में लिखा ब्रैकेट में, देयर इज नो सच थिंग्स एज इंस्टेंट डेवलपमेंट. जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है, 2 मिनट में कॉफी बन गई, नूडल्स बन गया 2 मिनट, वो डेवलपमेंट नहीं है. त्वरित विकास नामक कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है. आज अगर हमारा ग्रोथ एक सस्टेनेबल हाई लेवल पे पहुंचा है, तो उसके पीछे कई दशकों का डेवलपमेंट प्रोसेस है. I will cover in detail in next parts. तो उसी को लिखा है लास्ट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो विशेषताएं हो सकती है वो नीचे हो सकती हैं. जैसे इंक्रीज इन आउटपुट और प्रोडक्शन हैज टू बी सस्टेन्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आउटपुट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ध्यान रखिएगा बार बार, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. इसलिए जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आउटपुट या प्रोडक्शन को भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन होना चाहिए. नंबर 2 इज चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट वुड स्प्रेड आउट इन द एंटायर इकोनॉमी. सेकंड है आर्थिक ढांचे में परिवर्तन जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विकसित हो जाएंगे या फैल जाएंगे, वो होना चाहिए. इट मीन्स no, economic structure should not confine to only some parts of the economy, but it should cover entire economy. And number 3, growth has to be accompanied by an increase in efficiency. कि केवल प्रोडक्शन का बढ़ना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, cost cutting, better quality of product,
that is also associated with the term economic growth. Only then we can think about development of any nation in a long time period. So when you compare growth and development, you have many areas of comparison also. Economic development is shaped not only by economic factors, but also by non-economic factors like social, cultural, and environmental conditions of the economy. जो शब्द आर्थिक विकास है, वो आर्थिक विकास केवल आर्थिक कारकों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक गैर आर्थिक कारक भी इसके पीछे होते हैं, जैसे सामाजिक फैक्टर्स हैं, सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं, पर्यावरणीय स्थितियां हैं। ये सब आपके डेवलपमेंट की दिशा और दशा निर्धारित करती हैं। Economic development is defined as the process by which a country improves the economic, political, and social well-being of its people. जहां इकोनॉमिक ग्रोथ केवल इनकम इंक्रीज की बात करता था, वहीं पर डेवलपमेंट कहता है कि किसी देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। It is not just growing the economy, but growing in a way that improves the quality of life of the people. डेवलपमेंट का अर्थ केवल अर्थव्यवस्था को ग्रो करना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को उस प्रकार से ग्रो करना है जिससे देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। One can get the economic growth of a country by comparing its GDP at present with the GDP of last year. जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो बड़ा आसान है, क्योंकि एनुअल है, तो आप लास्ट ईयर की जीडीपी और इस साल की जीडीपी में को कंपेयर कर लें और बता दें इतना ग्रोथ हुआ हमारा, तो बड़ा सिंपल है। However, it is not easy to measure development as it is based upon many socio-economic parameters. लेकिन जितना आसान है ग्रोथ को मेजर करना, उतना आसान डेवलपमेंट को मेजर करना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक मानक पैरामीटर्स शामिल होते हैं। जब इतनी बात हम लोग कर लें तब हमें वो डायग्राम समझ में आ जाएगा कि वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द बेस or lower stage of growth and growth is the high stage of development. Because if people are healthy, skilled, a broader mindset, better productive, society is better, only then it will result into higher economic growth rate also. I have given a very brief idea about the term economic growth and then term economic development. इतने में कोई डाउट हो बताएं, अदरवाइज विल जस्ट मूव फॉरवर्ड कि हम डेवलपमेंट को कैसे समझ सकते हैं। आप कहते हैं ना कि इट इज इंप्रूवमेंट इन नॉन इनकम डायमेंशंस आल्सो, देन व्हाट कैन बी इनकम और नॉन इनकम बोथ। आई विल जस्ट कवर इन फ्यू पॉइंट्स when we club these two terms together and see what parameters are covered under development. सर, क्या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेस स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर कह सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुपर स्ट्रक्चर कह सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। ये शब्द यहाँ पे यूज होगा ही नहीं। जब भी आप सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ या डेवलपमेंट को इंटर में बात नहीं करे। इसमें आपने कहा पूरी सोसाइटी की आर्थिक स्थिति की बात हम लोग कर रहे थे, और पूरी सोसाइटी के पॉलिटिकल, रिलीजियस, जुडिशियल, इन सारे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो शब्द का उपयोग नहीं होगा। नाउ लेट मी डिस्कस few more thing that yes sir, what is inclusive growth? Sir, inclusive growth. Although inclusive growth I will discuss at least 2 or 3 days, but since you have asked the question,
should I answer you one sentence only? Will it sufficient or will discuss in detail? Just tell me first what you want. सर सफिशिएंट होगा एक लाइन. अच्छा चलिए डिस्कस इन डिटेल. भाई डिटेल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पूरा चैप्टर है आपका आगे. चलिए लेट मी फर्स्ट नॉट एट दैट टाइम सर. लेट मी फर्स्ट एक बड़ा सेंटेंस सुनिएगा. द पर्सन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन उनके लिए पहले है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है. हो सकता है आपने किसी इंटरव्यू की बात पढ़ी हो, किसी ने बताया हो कि इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. तो मेरा जवाब है द ग्रोथ विच इज एक्सक्लूसिव इन नेचर इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ. इसका उल्टा कहूं, द इंक्लूसिव ग्रोथ इज दैट ग्रोथ विच इज नॉट एक्सक्लूसिव इन नेचर. समावेशित, इसका हिंदी में होता है समावेशी समृद्धि. समावेशी समृद्धि वो समृद्धि है जो असमावेशी ना हो. बताइए क्या समझे आप जिन्होंने सवाल पूछा था. सर एग्जाम्पल दे दीजिए. चलिए मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अब मैं आपको इसमें बिल्कुल ही नया कंसेप्ट दूंगा आपको. ये बताइए मुझे पहले कि आपका पेपर 1 शुरू हो गया कि नहीं. पेपर 1 नेशनल इनकम पढ़ा गया. नेशनल इनकम क्या है सर? मैम अभी पढ़ा रही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि इनकम में जब इनकम होता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर शामिल होते हैं. फैक्टर्स से इनकम होगा ना, ये तो पढ़ा होगा आपने ना. यस सर. यस सर. मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट बात कर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. यानी यू नीड लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए. ठीक है. और ये सब जब मिलकर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे तो उससे प्रोडक्ट होगा, वो इनकम हो गई, आउटपुट हो गया. यही तो होगा आपका कि आपके इनपुट्स हैं और इनपुट से आउटपुट मिलता है. एक सिंपल जो आपने B1 में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट भी पढ़ा होगा B1 में आपने. यस सर. अब हम उसी को बात कर रहे हैं. तो सपोज प्रोडक्शन है, इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में देखें. लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड इक्वेशन के समझ लें. जैसे हम कहते हैं A + B = C. हम उसी इक्वेशन को सोचिए माइंड में. सपोज हम लिख रहे हैं A + B = C. ये A + B जो है ये सपोज लेबर एंड कैपिटल. A इज लेबर, B इज कैपिटल. = C मींस प्रोडक्शन हुआ. इज इट क्लियर टू यू? यस यस अब देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं. अब ये क्या कह रहा हूं, जो ये A + B है यानी प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, या यूं कहें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन ये तो हुआ ना, आपने कहा हमने इतना कैपिटल लगाया, इतना लेबर लगाया, इसका तो इतना आउटपुट हुआ, इसका तो C हो गया आपका. नाउ ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है, से वन ग्रुप, केवल एक ही एग्जांपल ले लें, लेबर या जो पीपल हु आर एंगेज्ड. अगर ये बताइए, अगर ये जो A है ये केवल कुछ हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड पीपल ही हों, A, और B बहुत ऊंचे मात्रा का कैपिटल मशीन ही हो, जो दोनों मिलकर आउटपुट C बना रहे हैं, C इज आउटपुट. लेकिन ये जो A था जिसमें आपने कहा ह्यूमन कैपिटल लगा हुआ है, इसमें वेरी हाई स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, और जो लेस स्किल्ड या अनएजुकेटेड हैं, दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट. जिनके पास आय नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, वो इसमें भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं. तो ये जो आउटपुट बना, ये प्रोडक्शन ही तो इनकम है. ये किन्हें मिलेगा? जो C हुआ आउटपुट, दैट इज इनकम, वो उस पर हक किसका होगा? इन्हीं A या B का होगा या किसी और का भी होगा? A का होगा. B का. A and B बोथ ना. जो yes, sir, A and B both. जो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, उन्हीं को तो बेनिफिट मिलेगा. यस सर. यस. अब नाउ आई एम सेइंग व्हाट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव. इट मींस अगर बहुत बड़ी मात्रा में सोसाइटी का बहुत बड़ा सेक्शन ना A है और ना B है, वो अलग थलग है, तो क्या उसको C का हिस्सा मिलेगा कोई? बिल्कुल नहीं मिलेगा. नहीं. तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया,
that example is the example of exclusive growth, not inclusive, where a large section of society have remained outside of the production system. No benefit is reaching to them. They are not able to participate in the growth process, and they are not being benefited by the growth process. That is called exclusive growth, which is not inclusive growth. तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये हुआ, जो आपने सवाल पूछा था, जब सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स, स्पेशली वो सेगमेंट्स जो अब तक मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे, दे आर आल्सो एबल टू पार्टिसिपेट in the growth process, and they are also able to be benefited from that growth process. That is called inclusive growth. मैंने बहुत ब्रीफली बात की है आपसे. I will discuss in detail. बहुत डिटेल में. जिन्होंने सवाल पूछा था उनको कुछ समझ में आया कि नहीं, बताइए बात. Yes sir, clear. It means आपने भी जो पढ़ाया था सर, इसे वॉइसलेस ग्रोथ में कह सकते हैं. हाँ, क्या कह रहे हैं सर? अगर एक्सप्लोसिव की बात, सुनिए, जब मैंने कहा ना कि मार्जिनलाइज्ड अलग थलग, तो उसमें तो वॉइसलेसनेस भी है, तो चाहे वो जेंडर के रूप में थलग पड़ गए हो. अभी मैंने एग्जांपल दिया कि डिफेंस सेगमेंट तो है, बट इफ योर वुमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, इट मींस इट इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ. तो जेंडर इंक्लूसिवनेस, पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस, इनकम इंक्लूसिवनेस, ये सारा इंक्लूसिवनेस के डायमेंशन है. इसलिए हम लोग कहते हैं द ग्रोथ विद अ ह्यूमन फेस इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ. मैं इंक्लूसिवनेस बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेक एटलीस्ट 2 days टू टीच यू व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. क्योंकि आपने बीच में सवाल पूछा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दूं कि ग्रोथ एक्सक्लूसिव डिजायरेबल नहीं है, ग्रोथ इंक्लूसिव होना चाहिए. और ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉर इंडियन इकोनॉमी कि हम लोगों ने पहली बार इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस लगातार 2 5-year प्लान्स में इंक्लूसिव ग्रोथ को ही सेंट्रल फोकल थीम बनाया था. कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ. हम लोगों ने 12 प्लान्स पूरे किए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक इशू लगातार 2 प्लान्स में सेंट्रल इशू के रूप में शामिल हो. ऐसा कभी नहीं हुआ. दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस. तो आजकल ग्रोथ के साथ 2 शब्द बहुत आने लगे हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा. 1 ग्रोथ इंक्लूसिव and 1 is green growth. Green, हरित समृद्धि, it is sustainable. आजकल इनकम के आगे हम लोग जाते हैं, ग्रीन इनकम की बात करते हैं. पूरा का पूरा पार्थ दास गुप्ता कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने टू मेजर ग्रीन जीडीपी. तो हम लोग अब जीडीपी की बात करते हैं, हम लोग ग्रीन जीडीपी की बात करने लगे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैंने कहा था फ्यूचरलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए, तो फ्यूचरलेस ग्रोथ को संभालने के लिए ग्रीन ग्रोथ की कल्पना है. एनीवे, दैट इज डिस्कस लेटर ऑन. हमने पहले बेसिक टर्म समझ ले, तब तो आगे बढ़ पाएंगे. एनीवे, ओके. तो अब देखिए, हमने कहा था कि जब आपने कहा था, लास्ट सेंटेंस लिखा था कि इंप्रूवमेंट इन इनकम एज वेल एज नॉन इनकम डायमेंशंस. तो ये जो डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, वो क्या क्या हो सकते हैं. आई हैव जस्ट गिवन सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कि व्हाट आर द पैरामीटर्स which can be very popularly measured to understand the term development. जैसे क्या क्या आपने लिखा ना, इनकम एंड नॉन इनकम दोनों हो सकते हैं. तो सपोज द पैरामीटर कैन बी इनकम, आय हो सकता है डेवलपमेंट में. अब इसमें भी कई है, सच एज ग्रॉस इनकम, समग्र आय, नेट इनकम, निवल आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, क्विंटाइल इनकम यानी 20% की इनकम, गिनी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एटसेट्रा, आय विषमता के गिनी गुणांक आदि. तो इनकम के भी तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं which can be used as parameter. Second can be poverty, can be the also dimension. इसके भी बहुत से पैरामीटर्स हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी निर्धनता, कैपेबिलिटी, क्षमता, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन इट कैन बी डेमोग्राफिक, जनांकिकीय जनसंख्या संबंधी हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, infant mortality, child mortality, etc. There can be so many indicators of the demographic dimension also. Then it can be education, such as literacy rate,
enrollment ratio, dropout rate, etc. तो एजुकेशन के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं. Then it can be disease parameter, such as communicable diseases, non-communicable diseases, etc. Then it can be gender, such as gender empowerment measure (GEM), gender development index (GDI), gender inequality index (GII), gender gap, etc. Then it can be happiness parameter, such as World Happiness Index (खुशहाली या खुशी सूचकांक). It can be social, such as social progress, corruption, freedom, opportunity, etc. It can be environmental parameters such as carbon dioxide emission, forest cover, etc. Or it can be composite. Composite means when you include within one index so many dimensions, such as human development index. It can be technology dimension also, such as technology achievement index. I have given more than 10 parameters, important parameters, which you can mention when you try to elaborate the meaning of development. So when we write, it includes income as well as non-income parameters. Then in that, I have covered both the dimensions, income as well as non-income, in many dimensions, in many indicators also. Out of these dimensions that we have just mentioned, HDI is in your syllabus, GDI, GII, these are also in your syllabus. Environment is also in your syllabus. I will cover some of these points that I have mentioned right now in different chapters also in detail. I just want to give you the basic idea about the term development and its various dimensions. Now tell me if any doubt till this point, then I will cover two factors and other things. If you have any question on the term development. Sir. हाँ बताएं. So what is instant development? There is, मैंने लिखा है, there is no term called instant development. Instant development कहाँ होता है? Instant कॉफी होती है, डेवलपमेंट नहीं होता. उनका मतलब सस्टेनेबल से होगा सर. यानी उन्होंने पूछा व्हाट इज इंस्टेंट डेवलपमेंट. इंस्टेंट डेवलपमेंट होता ही नहीं तो क्या सस्टेनेबल? क्या सस्टेनेबल इज नॉट इंस्टेंट, इट इज लॉन्ग टर्म. डेवलपमेंट इंस्टेंट होता ही नहीं भैया. आप पढ़िए, आपने यही लिखा, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है. आपने क्या व्हाट इज इंस्टेंट डेवलपमेंट लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज इंस्टेंट डेवलपमेंट. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. इसको आम जीवन में समझेंगे. आम जीवन में एग्जांपल दूं आपको आम जीवन का. यस सर. चलिए, जो इस वक्त आपको सुनने में अच्छा लगे वो एग्जांपल देता हूं. जैसे अपने बहुत पॉपुलर शब्द है इंस्टेंट कॉफी, है कि नहीं? इंस्टेंट एक्सप्रेस का तुरंत मशीन दबाई, 1 मिनट कॉफी बन गई. इंस्टेंट फूड का बहुत बढ़िया एग्जांपल है नूडल्स. नूडल्स बनने में कितना मिनट टाइम लगेगा? 2 मिनट. सर 2 मिनट वाली मैगी. 2 मिनट. अच्छा चलिए, मैं दूसरा एग्जांपल बताऊं. अगर आपको बाटी चोखा बनाना 2 मिनट बन जाएगा? बाटी चोखा 2 मिनट बनेगा? नो सर. नहीं सर. 2 घंटे लग जाएंगे. 2 घंटे लग जाएंगे ना. तो बाटी चोखा आपका डेवलपमेंट है और नूडल्स आपका ग्रोथ है. बस ये समझ लीजिए. अब बात समझ में आई? तो इंस्टेंट बाटी चोखा कहां से हो सकता है? जो आपने सवाल पूछा कि बाटी चोखा इंस्टेंट का, कि आपने फट से 2 मिनट बना के तैयार कर दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल. इसी में लिखा देयर इज नो सच थिंग एज इंस्टेंट डेवलपमेंट. हालांकि मैंने एग्जांपल लेकर शायद आपको अच्छा नहीं किया. आपका मन अब यहां नहीं लग रहा होगा, आपका मन कहीं और भटक गया होगा. सुबह सुबह गुड़ बना के. लेकिन कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल से चीजें याद हो जाती है कि इंस्टेंट यानी झटपट, त्वरित. विकास त्वरित नहीं होता. आपने जब लिखा है आपके ऊपर कि इट इज सस्टेन्ड एफर्ट, ये निरंतर प्रयास है, इसलिए तात्कालिक प्रयास नहीं है ये. इसलिए आप ग्रोथ को हर 3 महीने में नापते हैं, 6 महीने नापते हैं और साल में नापते हैं. लेकिन आप कभी भी अपने व्यवहार को, अपनी कुशलता को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी शिक्षा की उपलब्धियों को, इसको आप हर 3-3 महीने में नाप नहीं सकते. ये एक दीर्घकालिक है. संस्थागत आपके दृष्टिकोण परिवर्तन, आपके सोच में परिवर्तन, ये तत्काल नहीं है, इट इज लॉन्ग टर्म, और जिसपे बहुत सी चीजों का असर पड़ता है. तो
समाज का दृष्टिकोण बदले, ये आपको इंस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। एक लंबा समय लगता है उसको स्वीकार करने में और बदलाव आने में। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी 2021 में वो चेंजेस नहीं आ पाए हैं। और कैसे नहीं आ पाए हैं, किन देशों में है, उसका एग्जाम्पल आपको हाल में अफगानिस्तान में दिख रहा होगा। In number of countries, women are not allowed to participate in political system. They are not even allowed to drive motor cars also. सर अपने यूनिवर्सिटी में संडे सैटरडे को महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। कहां पर? अपने यूनिवर्सिटी में मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, 2-3 लोग बोलने लगे। कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में संडे सैटरडे को लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता, जबकि लड़कों को जाने दिया जाता है। That is also. लेकिन कभी आपने सोचा अगर ऐसा है तो उसके पे जिम्मेदार कौन है, पुरुष या स्त्रियां? फीमेल या दोनों प्रशासन जिम्मेदार। ये नहीं है, ये आप अपने से फिर सोच के देखिएगा तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। Because I have seen campus, I have this city, I have seen this country, state also for decades. And मैं हमेशा ही कहता हूं कि please try to improve your behavior. Please try to behave like an educated human being. बस ये, it is for everybody. आप इसको किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जस्ट योर बिहेवियर, इट रिफ्लेक्ट्स योर ओन परसेप्शन, योर ओन माइंडसेट। इट इज वेरी 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 सॉरी स्टेट फॉर मी ऑल्सो टू सी दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स while moving on the road making so vulgar comments, or comments rather. Why do you make comments? Gender based comments. This is very bad. तो ये मैंने पूछा रीजन कौन है, बताइए। That is why we need changes in our perception. That is long term change. मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अपने से शुरू करना चाहिए पहले, कि how I should reform myself, then I can think about other people also. Yes sir. That is meaning of education. सर मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं जो उन्होंने पढ़ा होगा, मैं बताता हूं। कबीर दास वॉज इलिटरेट, निरक्षर थे, बट ही वॉज हाईली एजुकेटेड, लेकिन बहुत शिक्षित थे। वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड बट हाईली इलिटरेट। यस सर, लिटरेट हो गए लेकिन शिक्षित नहीं हुए। दैट इज द परसेप्शन में चेंज की बात है। पढ़ा लिखा गवार। हाँ, बहुत सारे शब्द हम उसके लिए। आप कभी देखिए, बहुत आपका एग्जांपल मैं बहुत सारे दे सकता हूं। अब दिक्कत ये है कि हम लोग आमने सामने नहीं है। पंचायत चुनाव होते हैं और जहां महिला आरक्षित सीट होती है, वहां पर पोस्टर छपता है, तो महिला की जो चुनाव लड़ रही है उसकी फोटो बहुत छोटी सी होती है और उनके पति की फोटो बहुत बड़ी सी होती है। कभी आप इसका उल्टा नहीं देखते कि अगर पति चुनाव लड़ रहे हो तो पति की फोटो छोटी है और महिला की पति फोटो बड़ी है, कभी नहीं देखते। That is the perception, that is the gender inequality in our society. जीतने के बाद भी महिला प्रधान होती है और पुरुष प्रधान पति। हाँ, तो ये किसने बनाया हुआ है? सब काम प्रधान पति करता है। प्रधान वही that is by as the question कि ये स्थिति कौन लाया है? That is I was saying कि the decisions are taken by men even in 2021 and that perception has to be changed. जब तक हम ये चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग विकास की जो बात करेंगे वो अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं जो अगला शब्द आपके सामने लाऊंगा वो है प्रोग्रेस। प्रगति क्या है? ये प्रथा सर, ये परसेप्शन सर हजारों साल से है और हमें लगता है कि रिलीजन भी इसके लिए जिम्मेदार बहुत ज्यादा है। बहुत चेंज हो रहा है, चेंज बहुत हो रहा है। देयर आर चेंजेस। नहीं, रिलीजन नहीं जिम्मेदार है भाई। पहला सेंटेंस सस्टेन्ड एफर्ट। रिलीजन जिम्मेदार नहीं है भाई। अरे बाहर से इन्वर्टर्स आए। ओके वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। जो आपने कहा ना बहुत सालों से, तो मैंने इसे लिखा इट इज सस्टेन्ड एफर्ट। बहुत चेंज है परसेप्शन में, जो आज से डिकेड्स पहले था वो नहीं है।
बहुत चेंजेस हैं इसमें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सम ऑफ माय गर्ल्स स्टूडेंट्स नाउ दे आर इन ए वेरी हाई रैंकिंग पोजीशन इन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में भी हैं, तो ये परसेप्शन चेंज बहुत है। एंड इट इज नॉट अ ओवरनाइट चेंज, इट टेक लॉन्ग टाइम, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। That we'll discuss in gender-based inequalities index also. Anyway. Sir, one question. Yes, you want to say something? Sir, we have not yet went to the university for any classes. Sir, is it true that girls are not, means, sir, they are not, sir, they do not have any permission to go on the Saturday and Sunday? No, because it is not that they are not permitted. It is not, they are allowed, because sometime I also go on Saturday, Sunday, because in general, Saturday, Sunday, university is closed because it's a 5-day week. That is why they want to avoid the unnecessary gathering in university campus. That is the only reason. Otherwise not. Because we have co-education classes there. But just to avoid any incident in the campus. सर ये लड़कों के लिए भी होना चाहिए ना? Just because of the security concerned, they may this, but it's not कि ऐसा सभी यूनिवर्सिटी में होता है। सर ऐसा सभी यूनिवर्सिटी में होता है। नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है। Why we are discussing? तो यूनिवर्सिटी वालों का भाई कुछ नहीं जाता। यूनिवर्सिटी वाले तो आज ओपन कर देंगे, लेकिन बिहेव कैसे करेंगे वो लोगों के ऊपर। सर Please let me confine to our issue and topic. These type of gossip things can you discuss in any road talk? Sir, please leave the topic. Let us first focus on our topic and the issues and terminologies. Give a serious thought to it. We should not discuss the non-serious things, because time is very, very precious. Please respect the time also. That is the first and foremost quality of your personality. To manage the time and make it more and more productive and beneficial. Therefore, we should not waste such gossip making issues. Okay. Sir, I have a question. Sir. Yeah. सर जैसे आपने अभी बताया था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ जो होता है वो तो क्वांटिटेटिव होता है, तो क्या हम इसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो क्वालिटेटिव दोनों शब्द है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं दूंगा कि ग्रोथ इंक्लूसिवनेस को हम डेवलपमेंट के साथ भी और ग्रोथ के साथ भी जोड़ते हैं। ओके सर, मैं उसको दूंगा एग्जांपल, बहुत सारे दूंगा, और उसको हम लोग प्रोग्रेस के साथ भी देख लेंगे। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, आपका क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिल जाएगा आपको। लेट मी जस्ट वेरी ब्रीफली टेल यू व्हाट इज प्रोग्रेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने सवाल पूछा था वो क्या क्या है। सर क्लास कितने टाइम और होगी? जब आप चाहेंगे हो जाएगी ओवर, जब कहेंगे। चलने दीजिए सर, जैसा चल रहा है। Sir, I don't have much internet. Okay, let me stop the class right now. And 50% data already used. Okay, can we? Oh, sir, please continue, sir. Can we meet tomorrow also? Yes, sir. अगर आपका किसी और सब्जेक्ट का क्लास ना हो तो कैन आई फिक्स इट? We can meet, sir. Tomorrow at 10 o'clock. We can meet tomorrow. Yes, sir, tomorrow at 8 a.m. Can we have a class? Let me finish. Can we have a class tomorrow from 9 to 10, 1 hour? So that I Yes, can... sir. No, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 9 is good, sir. नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। Stop today right now, and I will again meet you tomorrow at 9 o'clock. 9 to 10, 1 hour. I try to finish this part, at least some background part. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.